Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In today's video, I'll be discussing about Code of Criminal Procedure and some of its important terms which are frequently used when we study CRPC. So such terms such as cognizable offences, non-cognizable offences, what is the difference between bailable and non-bailable offences, and what is the objective of CRPC, so why we need to study this criminal law. So all these things we'll study in this video. So let's begin. CRPC is a very interesting subject, I believe, because it deals with the problem at a very basic level. It deals with that how actually the problem arose, and especially for you, if you are dealing a case of criminal law, then it's very important, very beneficial for you, because then you will understand and you will have the experience that how people land in problems, how people land in courts, how people land in jail. So then it would be very beneficial for you, and you will learn that how people learn from mistakes and all that. And also when we talk about that, what exactly is the objective of CRPC? So CRPC basically protects the society from the lawbreakers, because I believe that in every set of society there are certain set of people who always break the law, who always misuse the law. So CRPC is that part of the law which protects the society from those lawbreakers. And also one more important thing which I like to mention is that it deals with both substantive law and procedural law. Why? Because substantive law is the law which prescribes the punishment, and procedural law is the law which prescribes that what is the procedure which has to be followed to arrest those who are breaking the law. And जब तक एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जब तक प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा तो जो सब्सटैंटिव लॉ है वो वर्थलेस ही होगा, एक तरीके से उसका कोई यूज नहीं होगा, एक यूजलेस होगा. वाई? बिकॉज कि अगर कोई पर्सन जो है कमिट करता है मिस्टेक या फिर कोई लॉ ब्रेक करता है, तो वो खुद तो नहीं आएगा कोर्ट में कि भाई मैंने ये जो है क्राइम कमिट करा है, सो अरेस्ट मी. कोई ऐसे नहीं करता. जो भी पर्सन जो है ऑफेंस कमिट करता है, क्राइम कमिट करता है, वो हमेशा अपनी पूरे सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता है कि वो पकड़ा ना जाए. तो खुद तो कोई आता ही नहीं है. कौन मतलब कि जो कोर्ट में जो केस है कौन लेके जाता है? विक्टिम्स, अग्रीव पार्टी, यही जो है अगेंस्ट जो है उस क्रिमिनल के केसेस लेके जाते हैं. तो अगर प्रोसीजरल लॉ नहीं होगा तो जो सब्सटैंटिव लॉ है जहाँ पे पनिशमेंट सिर्फ डिफाइंड करी गई हैं तो वो जो है वर्थलेस हो जाएगा. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव प्रोसीजरल लॉ ऑल्सो. सो CRPC जो है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो जो है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम क्रिमिनल्स. ये क्या करता है? जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको डिटेक्ट करता है कि कौन कौन क्रिमिनल्स हैं, फिर उनको अरेस्ट करते हैं, एंड देन फाइनली उनकी पनिशमेंट जो है वो डिटरमाइन होती है, उनकी फेयर ट्रायल होती है, और फिर बाद में उनको जो है पनिशमेंट अंडरगो करनी पड़ती है. Now it's very important to differentiate between what is cognizable offences and what is non-cognizable offences. First and the foremost point of distinction between cognizable and non-cognizable offences is that in cognizable offences a police officer can arrest without warrant, meaning thereby कि पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं अक्यूज पर्सन को विदाउट एनी परमिशन और ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. वेयरएज इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट. एंड एक चीज ये भी है, अगर एक केस में अगर एक से ज्यादा अगर ऑफेंस कमिट करी गए हैं और उसमें से अगर एक भी केस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो पूरा केस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा. और इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उस केस में एक से ज्यादा ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल हैं तो पूरे केस को नॉन कॉग्निजेबल नहीं मानेंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक्स. आई विल रिपीट इट अगेन कि अगर एक केस में एक से ज्यादा अगर ऑफेंस किया गया है, वो एक से ज्यादा ऑफेंस हुए हैं और उसमें एक भी अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो पूरा जो केस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा. और अब बात आती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो केसेस होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब की गई है वो 3 years है या फिर 3 साल से ज्यादा है. और as far as non-cognizable offense is concerned, non-cognizable offense में अगर punishment उस offense की 3 years से कम है तो वो cases जो है non-cognizable offense
माने जाएंगे. सो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो मोर सीरियस होते हैं. दैट्स वाई हमको वो मतलब कि हमें जल्दी उन पर्सन्स को अरेस्ट करने की नीड होती है, नेसेसिटी होती है. दैट्स वाई पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सीरियस केसेस होते हैं. सो हम उनको जल्दी जो है अरेस्ट पर्सन को इसलिए करते हैं ताकि उसको ज्यादा टाइम ना मिले अपने एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय करने के और फर्दर जो है टैंपर करने के, एविडेंस को फैब्रिकेट करने के. सो दैट्स वाई हम जल्दी जल्दी इसमें जो है कार्यवाही करते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं. सो दिस वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. नाउ अब बेलेबल ऑफेंसेस और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो है वो सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है. और उसमें यही दिया गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड में डिफाइन करे गए हैं, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो कि बेलेबल ऑफेंस नहीं है. ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा. सो टू मेक इट मोर सिंपल, बेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें जो बेल जो है आपकी वो मैटर ऑफ राइट है. बेल जो है आपको पुलिस स्टेशन से भी ग्रांट हो सकती है. बट नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आप जो बेल है, राइट टू बेल इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. आपका जो बेल है वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, बट इट्स एक्चुअली ए डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. इन बेलेबल ऑफेंसेस योर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, and in non-bailable offenses bail is a discretion by the court. And also one more important thing कि जो bailable offenses होते हैं वो less serious होते हैं, थोड़े कम serious nature के होते हैं, और जो non-bailable offenses होते हैं वो बहुत ही grave और serious nature के होते हैं. So this was a distinction between the two, that is bailable offenses and non-bailable offenses, and also non-cognizable offenses and cognizable offenses. That's all for today's video. I hope it's clear. Thank you so much. Bye bye.